It's a great credit that a person being so learned, so renowned, having back-to-back seminars, he just spoke about 1.5 or 2 hours at the ICI National Conference, and he's here. The energy of this learned dignitary is worth applauding. A great clap for a person who has been working round the clock. I request Toshini Valji be on the dais. Good evening, honorable citizens of Surat. It's a great pleasure having one of the most learned dignitary of India, a great speaker, a great human being, Dr. C.A. Girish Ahuja at the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. From the last half an hour, we had the privilege of being with him, and he was very proud of having such a great chamber in the city of Surat, which in fact is the fastest growing city in Asia. He was very proud of that. Thank you, sir, for giving the acknowledgement of Surat. So before we start, we have a welcome address from our Honorable President, Ashish Bhai Gujarati. Sir, please. Good evening, everybody. My colleague, Office Bearer, Vice President Shri Himanshu Bodawala, Group Chairman, CA Anuj Bhai Jariwala, Keynote Speaker and renowned expert on income tax, as well as member of Direct Tax Committee of ICAI, Dr. Girish Ahuja ji, member of Income Tax Committee, CA Harish Kumar Tasniwal, invited guests, members of SGCCI, participants, ladies and gentlemen. A very good evening and warm welcome to all of you to this informative session to be conducted by the experts. Friends, as per Section 147 of Income Tax Act 1961, the Income Tax Department has the power to reassess an individual's previously filed income tax returns. The assessing officer could pick up your income tax return for reassessment subject to some predefined criteria by sending a notice under Section 148 of Income Tax Escaping Assessment. An individual could receive a notice under Section 148 in case the assessing officer believes that such an individual's income chargeable to tax might have escaped assessment. The Finance Bill 2021 proposes a new reassessment procedure for an income tax which has escaped the assessment and in search and seizure cases. The explanatory memorandum stated that the new scheme of assessment would result in less litigation and would provide ease of doing business to the taxpayers. The extent scheme of the reassessment empowering an assessing officer who has a reason to believe that any income chargeable to the tax has escaped assessment for any assessment year to reassess such income. As the reason to believe is a subjective proposition, initiating reassessment procedure is often disputed by the assessee. Numerous rulings had defined the power of assessing officer and the duties of assessee regarding the reassessment notice. In various rulings, the courts have held that the assessing officer can be deemed to have valid reason to believe if he doesn't act on mere suspicion, gossip or rumor. He has some material in his possession and there is a direct nexus between such material and escapement of the income. And reason to believe should not be merely a change of opinion. Currently, the assessing officer is required to record his reason for reopening the assessment. If the notice is issued without recording the reason for the same, the notice and the reassessment are deemed to be invalid and void. Thus, the assessee generally challenges the reassessment notice either based on the reason recorded by the assessing officer or on administrative grounds. The Finance Bill 2021 now proposes a paradigm shift in the fundamentals on such entire scheme of reassessment is based. The Finance Bill 2021 substituted existing sections of 147, 148, 149 and 151 and inserted
a new section 148A, making a complete change in assessment proceedings related to income escaping assessment and such related cases. Consequential amendments have also been proposed to section 151A, 153A and 153C. When the taxpayer receives a notice for the return he has already filed and paid tax, we can understand how much tension it gives to the assessee to face such reassessment and face trial and consequences. On account of various changes being introduced in the Finance Bill 2021 with respect to the provision of such cases, today we have who has a detailed understanding on this subject, and they shall be enlightening us in understanding this 360-degree shift in the taxation policy of the Government of India and what preparation as a SSC need to have to face such a trial. Friends, once again, I welcome you all to this wonderful session on this subject. And sir, और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये मंच से कि आपका जो हम बजट स्पीच जो रखते हैं हर साल, तो वो स्पीच बजट के 2-3 दिन के बाद ही हो जाए तो दैट वी वुड बी ऑब्लाइज सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, President sir. We see a future tax professional in your speech, sir. Your in-depth knowledge of taxation is also worth every. Southern Gujarat Chamber of Commerce is very proud to have you as a president, sir. We would not like to miss this great opportunity of felicitating our honorable keynote speaker. I request honorable president to please felicitate our keynote speaker, Ahuja ji, with flowers. Himanshu Bhai Budawala, Vice President ji, please join for Group Chairman, sir, please. Thank you very much, Honorable President, sir, and Vice President, sir. Now, about this program, I request Group Chairman, Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, C. Anuj Jariwala, to please. Thank you, Pragdish Bhai. Good afternoon, all of you. Respected today's speaker, Girish Ahuja ji, respected President and Office Bearer of Chamber, all the dignitaries on the dais, and my dear friend. Warm welcome to all of you. Today the Chamber has organized a wonderful program on direct taxation with special emphasis on reopening matter. The topic on taxation is always fascinating to every citizen, taxpayers and tax professionals. We all know that the law keeps on changing every year, and even during the year what we are experiencing. The interpreting society of the law brings new innovations, idea, logic of interpretations, bring new face of law. On the other side, there is a tax administration system. We must understand that this is an era of digitalization and artificial intelligence. Government has placed a lot of its effort on centralization of various financial data at one center, place a system of its analysis, its comparison, its processing, its monitoring, and using maximum use to plug tax leakage and tax evasions. Presently, the entire income tax portal is transforming itself into JSON system. Though it created a lot of trouble, many criticism has been come from every corner of the society. Extension of time is also given, but at the same time, it is a strong message given by the government to every citizen that they are firm on the tax reforms and artificial intelligence will be over above all the bureaucratic system. This is a single message that government is highlighting to us. So in this era, we have to be more focused, more alert, more disciplined, more sincere about our tax aspects on day-to-day life. And therefore, we need to keep us updating on it. We are fortunate enough that today we have with us eminent speaker Dr. Girish Ahuja sir, who is giving us insight on tax laws and more particularly on section 148.
We welcome him to the city of Surat, city of joy, city of entrepreneurship, city of trade and industry. It is the fastest growing city in all aspects with zero unemployment rate, biggest hub of textile and diamond industry. From the ancient time also, the city is known for business coteries of Portuguese, Britishers, Dutch colony, etc. Our city is very well known as Choriasi Bandar Novo, a very big trading hub since our ancient time. Presently, the people of Surat has made its mark on global diamond business by constructing world-class green building, which is called as Surat Diamond Bourse, a biggest trading hub in the Asia, which itself nearly 25 running kilometer of the corridor within that building, and which will occupy within itself at a time more than 60,000 people in one single building. It is a huge infrastructure with all modern amenities. We can truly say the modern India's gateway of India for its international trade. Sir, the Surat city has achieved all this without any big corporate legacy. This all has been made by collective efforts of MSME sectors, which gives highest GDP growth and tax revenue from MSME sector, and it is one of the largest, fastest growing city of the world. I am happy to announce that the sir has given positive mark for within 2, 3, 4 days or after the annual budget to have a public meeting on budget in Surat. We are happy. At the same time, the Southern Gujarat Chamber of Commerce will provide many more such programs on taxation, and right now we have our learned speaker with us. Please enjoy, enrich the knowledge on taxation. Happy learning, enjoy the time. Thank you. Thank you very much, C. Anuj Jariwala. Now, before we start this program, Southern Gujarat Income Tax Bar Association would also like to felicitate our speaker after the keynote speaker. So I request the President Anil Bhai Kesha, Upadhyay ji and Rajni Bhai Patel to please be on the stage for the memento and the bouquet. Southern Gujarat Income Tax Bar Association. Thank you, President Sahib from the Southern Gujarat Income Tax Bar Association. Now, introduction of the speaker. I request Past Chairman of Surat Branch, C. Harishankar Toshniwal ji to please. गुड इवनिंग। मुझे एक ऐसी शख्सियत का परिचय करने के लिए कहा गया है जिसे टैक्स वर्ल्ड में टैक्स गुरु के नाम से जाना जाता है। ही इज द पर्सन हु इज डिलीवरिंग लेक्चर्स आफ्टर लेक्चर्स, एंड इवन दो एट दिस एज ही इज नॉट टायर्ड। आफ्टर बजट ही वॉज इन ह्यूज डिमांड, एंड सूरत सिटी नंबर कम्स एट द आफ्टर 17 days or 15 days. We are thankful to sir also for giving his consent. This year he is coming after 3rd or 4th day. He is, by profession, he is a chartered accountant, not in practice but in advisory. He also advises to the government of India on finance, all these finance matters, whether it is amendments, finance bill or etc. He is the guru of Arun Jaitley, and so many changes suggested by sir was incorporated in the Income Tax Act. जब उनसे बात होती है कि सर ये क्या किया, कि ये बोलते हैं कि भाई जो मैं अच्छा बताता हूँ उनके लिए वो तो लेते हैं, लेकिन हमारी अच्छी बात हम जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं। तो there are certain restrictions, though he is a core part of this finance committee, and his voice we always approach through him to say something to the government. This gentle fellow have authored number of books. He has taught number of chartered accountants produced under Ahuja sir. With this brief
profile introductions, I present before you Girish Ahuja sir. I request all of you to give him a big round of applause. Thank you, sir. Honorable President of the South Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Shri Ashok Gujarati ji, Vice President Himanshu Bodawala ji, Group Chairman Anup Jariwala ji, Prakesh Jaga Seth ji, the Chairman of Income Tax Committee, Member Income Tax Committee Harish Kumar Toshniwal ji, Anil Bhai Shah, President of the Income Tax Bar Association, and of course, ladies and gentlemen. Good evening to everyone. But let me tell you, I am not in a way connected with the government. I am one of member of I am really very particular about my fraternity, my chartered accountant friends, my income tax practitioner friend. तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया हूँ, लेकिन ये बात ठीक है, because Mr. Jaitley was my student in FM and he used to consult me at times. He used to accept my suggestions, but bureaucrat at times take this benefit in a different manner. I suggested many things to them. Those were in their favor. They have given the changes in the Finance Act 2021, even 2020, and prior to that in 2019. But whatever benefit we wanted, they have not given us. तो आगे से मैंने कसम खा ली है, उनको कुछ बताना नहीं है, ये भी बता दूं. I have told them I am not going to tell you anything about the trade and industry. ये लोग एयर कंडीशन रूम में बैठकर इंडस्ट्री के बारे में पता करना चाहते हैं, without knowing any practical experience, without knowing what kind of a difficulty a person who is running an industry or trade is facing. वो ये सोचते हैं कि सभी चोर हैं. ये एक दिमाग में बैठा लिया जो बिल्कुल गलत है. लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बदलना तो सबको पड़ेगा. This digital system, he is talked about, Mr. Jariwala, artificial intelligence. That artificial intelligence is now playing a very big role about each and every person. They have information. Tons of information are coming to the income tax department through 3 different departments. Number one, there is one called Financial Intelligence Unit. We call it as FIU, Financial Intelligence Unit. बताऊंगा क्या करती है. Second is Directorate of Intelligence and Criminal Investigation. नाम क्या है? डरने का नाम है. Directorate of Intelligence and Criminal Investigation. And third, एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट इनसाइट. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉफ्टवेयर ऐसे बना दिए हैं, सारी लिंकेज हो गया है. They have complete information about you. What is the role of Financial Intelligence Unit? Their input is coming from financial institutions like banks, NBFCs, mutual fund, or all types of financial institutions who are there in this country or even abroad. जो इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन को वो आपके annual information statement, you know that what is that 26 A's you are talking about, has the role of the 26 is going to be completely changed. पहले तो they used to give you information about TDS, TCS, advance tax paid, that's all, or some refund if any. That was the information was there. थोड़े दिन इंतजार कीजिए, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके 26 एस में एज इट इज आएगी. स्टार्ट हो गया है. Now whatever dividend you are receiving, whether tax has been deducted at source or not, it is a complete detail given in your 26 years. 20 रुपए का भी डिविडेंड आता है तो उसकी भी डिटेल आपके 26 years में आ जाएगी. Whatever interest you are earning on FDR, whether TDS deducted or not deducted, क्योंकि 40,000 से कम पे TDS डिडक्ट नहीं होता है, पहले 10,000 था, वो कुछ नहीं है. Deducted or not deducted, complete information is provided by the banks, NBFCs and others
टू दी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। वो ऑटोमेटिकली आपके पैन से लिंक होकर आपके 26S में आ रही है। वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, जो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करते हैं वो कंप्लीट कैपिटल गेन कैलकुलेट करके आपके 26S में आ जाएगा। ऑटोफिल नॉट इन द रिटर्न, ऑटोफिल इन दैट 26AS। You are going to make donation and you are claiming deduction under 80G. Complete detail of donation made by you will be there in your 26AS. Unless and until that information is there, you will not get deduction under 80T or 80G. वो deduction आपको मिलेगी नहीं। So much so, how many saving bank you have, the complete information of saving bank and interest also डिटेल उनके पास होगी। चाहे आपने उस पर TDS तो कटता ही नहीं है, लेकिन उनके पास कंप्लीट डिटेल होगी। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, दैट डिटेल दे हैव विद देम अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। लेट मी टेल यू, ईच एंड एवरी पर्सन दे हैव ए डिटेल ऑफ देम। पहला काम तो ये हो रहा है। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट यू कंप्लीट। यहां तक आप एक FDR बनाते हैं बैंक में, और जरा हाई वैल्यू की बनाते हैं, आजकल 10 लाख की लिमिट है, 10 से ऊपर बनाते हैं, 10 लाख की लिमिट पर बैंक नहीं है, पैन नंबर है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है कि दैट यू हैव FDR ऑफ दिस अमाउंट इन ए पर्टिकुलर बैंक। एक बैंक में, एक बैंक मीन्स नॉट ब्रांच, फुल बैंक में जितनी है, दे हैव ए इंफॉर्मेशन कि मैंने अगर स्टेट बैंक की FDR मेच्योर करा ली है और मैंने उसको दूसरे बैंक में दे दिया, तो मेरे से रीजन पूछा जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस फंड, एंड इफ आई डोंट गिव द सोर्सेज ऑफ दिस फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपलोड कर देते हैं, एंड देयर आफ्टर यू मे बी आस्क्ड टू पब्लिश द सोर्स ऑफ दैट इनकम। जितनी भी इंफॉर्मेशन कैश ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, they have complete information of the cash transaction. They have been told if the cash deposited exceeds a certain limit, please inform us. Not per branch, per bank. Please inform us. This is the duty of the bank to inform cash withdrawal. They also give you, they have a complete information of your cash withdrawal. Cash sale. मेरा अपना यूनिट है, मैं अपनी फैमिली का, जिसमें 80% मनी हमें कैश कलेक्शन होती है। 80% मनी, दैट मीन्स अमाउंटिंग टू अबाउट 150 करोड़ कैश कलेक्शन है। मेरा हर साल स्क्रूटनी में केस आता है। क्यों आता है? वाई यू आर कलेक्टिंग सो मच ऑफ कैश, व्हाट इज द रीजन? वो तो ठीक है, अब आया ना 2 लाख का 269 ST, लेकिन तो भी मेरा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, माई बायर्स आर कवर्ड अंडर 44 AD। When they are covered under 44 AD, that 40A subsection 3 relating to payment exceeding 10,000 is not applicable. मुझे सब के सब कैश में पेमेंट करते हैं, जो मैं इमीडिएटली बैंक में जमा करा देता हूं जिस जगह पर कलेक्शन होती है। लेकिन why I am collecting so much of cash, और मेरी पूरी डिटेल लिस्ट बनकर मेरे को आ जाती है कि आपके इस बैंक में इतना कैश जमा, इतना कैश जमा हुआ, इतना कैश जमा हुआ। एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज द पॉइंट। वी हैव टू रिप्लाई देम फॉर ईच एंड एवरी एंट्री। ये डिटेल किसने भेजी है? मैंने नहीं भेजी, बैंकों ने भेजी है। उनके पास कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग 10 लाख पर बैंक, दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और अब तो आपको पता है कि कैश डिपॉजिट करके कितना खतरनाक 269 ST आ चुका है, दैट यू कैन नॉट रिसीव मोर देन 2 लाख इन ए डे, यू कैन नॉट रिसीव ऑल दोज कंडीशंस। आई डोंट वांट टू टेल यू, ये सब एंटी अब्यूज सिस्टम आ गए हैं। You will have to convert yourself into payment by account pay check और account pay draft। वो तो छोड़ दो ना, अब तो RTGS कराइए और वो सब करिए, ऑनलाइन बैंकिंग कीजिए। अब दिक्कत बहुत आने वाली है। अगर आप कैश में डीलिंग कर रहे हैं तो सूनर और लेटर यू विल हैव टू गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ मच कैश यू आर रिसीविंग। सर, लोग चले जाते हैं LV के शोरूम में, बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड के शोरूम में LV का पर्स खरीदते हैं,
वो आपसे सिर्फ एक चीज पूछते हैं, अपना फोन नंबर दे दीजिए। सर वो फोन नंबर क्यों मांगते हैं? सर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी। पूरी डिटेल वहां से ले ली जाती है कि आप क्या खरीद रहे हैं। एक एक हमारी लेडीज तो कमाल कर देती हैं, जाती हैं और वहां जाकर बड़ी खुश कर नंबर अपना दे देती हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। सर लाइन लगी होती है एलवी के पर्स में आजकल, क्यों लगी होती है कि एट ए टाइम मैनी पीपल कैन नॉट एंटर। बाहर खड़े हैं, पैसा आ गया है, लेकिन याद करिए 1,99,999 की बिल के ऊपर कैश में वो बन नहीं सकती, सबको मालूम है। और वो 1,99,000 क्या 50,000 का भी चीज खरीदते तो आपका टेलीफोन नंबर ले लेते। मत दीजिए, समझ गया मेरा कहना? मत दीजिए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड कर रखी है उन्होंने, और कंप्यूटर में जो फीड करी है वो कभी भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। पीपल आर थिंकिंग एज इफ नोबडी कम्स टू नो। आपको बता दूं, मैं एक बार क्रोमा के शोरूम में गया टू बाई पावर बैंक, कुछ नहीं था, 2,000 रुपए का था। जब निकल रहा तो पेमेंट करी कैश में, कहां पर? ये एयरपोर्ट पे। उसने बिल दिया तो कहता है चल अपना नंबर दे दीजिए। बेवकूफ था, नंबर दे दिया। नंबर देते ही पूछता है सर आपका आईफोन कैसे काम कर रहा है? मैंने क्या मतलब? मैंने तो आपसे कोई आईफोन नहीं खरीदा। आपका वो टीवी लिया था वो कैसे काम कर रहा है? आपका आईपैड कैसे काम कर रहा है? आपने प्रो लिया था कहाँ? मैंने तेरे से तो लिया नहीं है। कहता है रुकिए, क्रोमा के शोरूम इंडिया में किसी भी कोने से आपने खरीदा है, फोन नंबर हमने डाला है, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है पिछले 10 साल की। समझ में आ रहा है? पिछले 10 साल की। मैं कहा मर गया भाई साहब। शुक्र है मैंने उस वक्त पैसे निकलवा रखे थे या क्या था, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, या तो वाइड की ट्रांजैक्शन करना, नंबर 2 की ट्रांजैक्शन अब बड़ी मुश्किल है। मैं एक दिन अपने घर में बैठा था, बच्चे नहीं थे, तो किसको फ्रेंड आ गया था कि पिज़्ज़ा खाना है। मैं डोमिनो में फ़ोन कर दिया, भैया पिज़्ज़ा के लिए नंबर दे दिया। मेरा नंबर वहाँ रजिस्टर्ड था। उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा भेज दीजिए। सर टॉपिंग कौन सी चाहिए? मैं कहा वो क्या होता है? मुझे क्या पता। कहता ये टॉपिंग होती है। मैंने क्या? कहता आपने पिछली बार ये टॉपिंग मंगवाई थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोल, कहता जी आप बाकी कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। मैं क्या मतलब? गार्लिक ब्रेड ये वो। मैं कहा आपको कैसे पता? कहता हमारे पास तो पूरे रिकॉर्ड है कि आपके कमरे अपने घर में कितने पिज़्ज़ा डिलीवर हुए, आज तक के रिकॉर्ड है। मैं कहा मर गया भाई साहब, ये कंप्यूटर है। It has got all information about you, and at times those information may be taken away from the e-commerce operator or e-commerce by the government. मुझे बाद में मत कहना, आपको बिल्कुल केयरफुल होकर अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये बता दीजिए आपके बारे में उनको सब पता है। अब दूसरा डिपार्टमेंट देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या करता है? 285 BA है जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देना पड़ता है हर साल। आपको 31 मई तक डिटेल जाती है, उसका वो एनालिसिस करता है। ह्यूमन बीइंग नहीं करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका आपका पूरा एनालिसिस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री हो रहा है। ब्लैक मनी एक्ट है हमारे यहाँ, वो कहाँ फटका क्या हुआ? फटका तो समझ गए ना, फटका बोलते हैं, फटका बोलो, फटकार ही है वो आपके ऊपर। वो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है। सिंगापुर में आपने क्या ट्रांजैक्शन की वो भी इंफॉर्मेशन है। दुबई में अगर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की हमारा एग्रीमेंट है तो वो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल उसको आ रही है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, वो इंफॉर्मेशन पता कहाँ शेयर होती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI, ED, पुलिस और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है सबको वो इंफॉर्मेशन जाती है अबाउट योर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अंडर 285 BA। कंप्लीट डिटेल सबको जाती है। 2 मिनट लगते हैं ना, अरे ईमेल ही तो करना, ये मारा और उसके पास गई, ये मारा उसके पास गई, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन काम कर रहा है। तो आपकी इंफॉर्मेशन उनके, ये क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में जब 148 में आऊंगा तब बताऊंगा क्या है।
तीसरा डिपार्टमेंट, अब जरा दिमाग खोल लीजिए क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट इनसाइट। आपने फैमिली ऑफिस सुना है? फैमिली ऑफिस का एक टर्मिनोलॉजी आई है जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स का पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, क्या है, कहाँ पर वो है। इनकम टैक्स ने प्रोजेक्ट इनसाइट में फैमिली ऑफिस बना लिया है। आपकी रिटर्न अकेली नहीं है, आपकी रिटर्न के साथ आपकी स्पाउस की रिटर्न का भी उनके पास इकट्ठा डेटा है, आपके बच्चों का भी इकट्ठा डेटा है और आपके पेरेंट्स का भी इकट्ठा डेटा है एक ही जगह पर। इसे फैमिली कंसर्न। आप बैठे हैं सर, मैं आपको बता रहा हूं जबरदस्त जी, आपकी स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स को लिंक कर दिया है, क्लस्टर कर दिया है। कहाँ कहाँ आप डायरेक्टर हैं, क्या सैलरी मिल रही है, कहाँ कहाँ आप पार्टनर हैं, क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, क्या सैलरी मिल रही है, क्या इंटरेस्ट आ रहा है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी, आपकी वाइफ ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी, आपका डेली खर्चा क्या, ड्राइंग्स हैं, फैमिली का क्या ड्राइंग्स है, फैमिली की क्या इन्वेस्टमेंट है, पूरा फंड फ्लो की इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी कर दी है फ्रॉम योर रिटर्न। जो रिटर्न आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ग्रुप बन गया है। इवन कंसर्न्स, अब अगर गुजराती जी की कंसर्न 5 हैं तो पांचों को एक ही जगह पर उन्होंने क्लस्टर कर दिया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, कौन से एडवांसेस जा रहे हैं, कौन से इधर से सेल इधर आ रही है, कौन सेल को बढ़ाने के लिए इधर करके आगे भेजता है, ये भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास है। क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, दे हैव टेकन इट टुगेदर वेयर देयर आर कॉमन डायरेक्टर्स, वेयर देयर आर कॉमन पार्टनर्स, उसको भी कर दिया है। सर इतनी इंफॉर्मेशन है, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, यूज नहीं हो रही थी, अब यूज होनी होगी। तभी तो सेक्शन 148 हटाकर नए सेक्शन 148A डाल दिया। सुनिए क्यों डाला। पहले आप जब रिटर्न भरते थे आपको कुछ बताते नहीं थे, यू वर सपोज टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम योरसेल्फ और फाइल रिटर्न कर देते। दे यूज टू कीप क्वाइट, वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे हैड दे यूज टू कीप विद देम, नेवर यूज टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद द असेसी। आपने रिटर्न भरी, 143(1) में समरी असेसमेंट हुई, कुछ एडजस्टमेंट हुई तो कर दी, लेकिन उसके बाद क्या करते थे, जहां शक हुआ 143(2) कर देते, बताते नहीं थे। 143 में फिर आपसे इंफॉर्मेशन मांगते थे, शो कॉज देते थे, काइंडली प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन, और ये आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, फिर उसके बाद असेसमेंट करते थे। उसके बाद क्या होता था, जो आज अभी बोला अशोक जी ने, क्या था 147, ही हैज रीजंस टू बिलीव, बोला ना आपने, ही हैज रीजंस टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, यही कहा जाता था। लेकिन क्या आपको रीजंस बताए जाते थे पहले? जी नहीं। Now, they never used to share the reason. They used to keep those reason under their chest. आपसे बोला जाता था, 148 नोटिस दिया जाता था, काइंडली फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम बिकॉज सम इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। आपको बताते नहीं थे। They never used to tell you which type of income has escaped assessment. क्यों नहीं बताते थे? आप सोच रहे हो कि यार मैंने ये चोरी की है, उनके पास हो सकता है वो इंफॉर्मेशन ही ना हो, दूसरी कोई चोरी की इंफॉर्मेशन हो, तो वो देखते रहते थे, आपको वॉच करते थे, आप कौन सी इनकम को वहां रिटर्न में भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर आप रीजंस मांगते थे। You could not be, you were not provided any reasons before you file a return of income. GK Drive Shop की judgment है, the reason cannot be given to you in advance. You have to file your return of income in response to a notice given under 148, and after filing a return of income, you can ask for reasons also. फिर वो रीजंस का आप जवाब देते थे, काउंटर करते थे, ऑब्जेक्शन फाइल करते थे, फिर वो रीजंस को डिस्पोज ऑफ करते थे, और डिस्पोज ऑफ करने के बाद 147 में असेसमेंट होता था। यही था ना सिस्टम। अब कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हमारे पास रीजंस हैं, हम आपको पहले ही बता देंगे कि आपने ये गाड़ी खरीदी है, आपने ये इन्वेस्टमेंट की है, आपने ये चीज खरीदी है, आपने ये मकान खरीदा है। कुछ रीजंस, उनको इंफॉर्मेशन टीडीएस से आ गई। इवन आप देखिए डेटा माइनिंग 0.1% टीडीएस कलेक्ट कर रहे हैं 194Q में। क्या टीडीएस कलेक्शन के लिए है?
No, sir. It is not for the purpose of collection. It is for the purpose of data mining. कि डेटा को माइन कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितनों की सेल 50 लाख से ज्यादा का आपका सेल किया है, वो टीडीएस की इंफॉर्मेशन चाहिए उनको। वो 0.1% में कितना मिल जाएगा सर? रेवेन्यू लिए ही है। देयर आर सो मेनी केसेस डेटा माइनिंग, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में जो आपने कर लिया मोर देन 50 लाख, कलेक्शन तो 1% की है, लेकिन 1% में डेटा माइनिंग कितना हो रहा है? Everyone is knowing that if the sale of the property has gone above 50 lakh, the TDS has been deducted and there has been a transaction. This is the buyer and this is the seller. ये सारी चीजें फीड हो रही हैं इंटेलिजेंस में. So they are having lot of information with them. अब उन्होंने क्या कहा है? हमें नहीं रीजन चाहिए. If there is any, अब क्या सेक्शन 147 कर दिया? If there is any income has escaped assessment in assessment year, the assessing officer can assess or reassess such income. अब उन्होंने ये नहीं कहा reasons to believe. वो कहता है information in our possession which suggest that the income has escaped assessment. ये word use किया है कि the AO has information in its possession. Word use किया है, आपने देखा है? इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में डाला है. दे हैव इंफॉर्मेशन इन देयर सजेशन विच सजेस्ट दैट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. वो कहते हैं इंफॉर्मेशन पोजेशन का क्या मतलब है? कहां से इंफॉर्मेशन आएगी? वो कहता छोड़ दो, हम आपसे तो मांग ही नहीं रहे, हमने आपसे रिटर्न मांगी ही नहीं है, हम पहले बताएंगे ये लो, ये इंफॉर्मेशन हमारे पोजेशन में. बात को समझ रहे हैं? पहले तो रीजन छुपा कर रखते थे और आपको कहते थे रिटर्न भरो. अब कहते हैं रीजन हम बताएंगे, अब रिटर्न भरो. बात को समझ रहे हैं? इसलिए 148 आया है. सर्च के लिए छोड़ दो, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो नॉर्मल केस ऑफ रीअसेसमेंट का. क्या बोला है? आपको बताया जाएगा. कहां से आएगी इंफॉर्मेशन इन देयर पोजेशन? दो आए. एक तो बड़ा सिंपल है, सीएजी का ऑडिट हुआ और वहां पर पता लगा कि कुछ हुआ. अरे वो तो बहुत लिमिटेड केस है जहां सीएजी का ऑडिट होता है, कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल का. सबका थोड़ी होता है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल का थोड़ी होता है, और बड़ी बड़ी लार्ज का भी नहीं होता है. उसको तो छोड़ दीजिए. सीएजी का क्या है? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. ईयर टू ईयर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से इंफॉर्मेशन आएगी. किसको? एओ. कौन प्रोवाइड करेगा? डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा अंडर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कहां से पैदा हुई अनुज जी? वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द इंफॉर्मेशन विच दे हैव कलेक्टेड अबाउट यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. उस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होगा? एनालिसिस करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस केस में ये हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है. कुछ नई मशीनें कर रही हैं और वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो हर साल बनाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन एओ को दे देंगे. अब एओ को 148A में कहा गया पहले अप्रूवल लीजिए और फिर उसकी इंक्वायरी कीजिए जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दी. First, satisfy yourself that whatever information which has been provided to you, they require any reassessment or not. पहले AO उसकी इंक्वायरी करेगा अप्रूवल लेकर, फिर अप्रूवल लेकर आपको शो कॉज देगा, आपको हियरिंग देगा कि बताइए इसका क्या मतलब है, ये कहां से ये आई है. आप देख रहे हैं पहले बता दिया उसने, ये है मेरी तुम्हारी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये वाला चीज आपने करा है, बताइए इसका क्या है. अभी भी आपको नोटिस आ जाते हैं रोजाना, आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपने गाड़ी खरीदी, आपने ये किया. डोंट रिप्लाई, बट आपको कहते हैं हमें सब पता है आप क्या कर रहे हैं. वो भी साथ साथ भी बता रहे, इंडास बता रहे, सोच लो रिटर्न भरने जा रहे हो, ठीक कर लो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं. यही तो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. 143(1) से पहले इंफॉर्मेशन आ रही है सीओ से, वो जो है सीपी, वो जो वहां से इंफॉर्मेशन लगातार स्पीड हो रही है आपके यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाए. अब ये क्या कर रहे हैं? ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से जो इंफॉर्मेशन आएगी जहां पर डाउट होगा वो एओ को भेज देंगे. अब एओ तो पावर ले लेगा तो बहुत ज्यादा तंग करेगा, तो वो अप्रूवल लेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दैट आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, काइंडली अलाउ मी टू गो फॉर इंक्वायरी. वो फिर इंक्वायरी करेगा अपने लेवल पर जो भी करनी है. उस इंक्वायरी के बाद वो अगर सेटिस्फाई होगा देन ही विल गिव यू an opportunity of being heard by issuing a show cause notice, and with a limited time will be given to you to appear before him within a period of 15 days or whatever is it. Then you have to file your response और वो भी hearing करके उसके बाद वो decide करेगा कि income is likely to escape assessment or not.
वो करने के बाद फिर अप्रूवल लेगा और फिर आपको नोटिस देगा 148 में टू फाइल रिटर्न। अब रिटर्न आपसे पहले नहीं मांगी गई है तोषनीवाल जी, रिटर्न कब मांगेंगे? जब आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर आपको बता दिया जाएगा कि ये वाला एक्सप्लेन करो पॉइंट, ये क्या इशू है। अगर तो आप सेटिस्फाई कर देंगे तो वो ड्रॉप कर दिया जाएगा केस, नहीं करेंगे तो 148 में ले जाएंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? अब इंफॉर्मेशन उनके पास है, दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और कहां से इंफॉर्मेशन आती है? कुछ तो इंफॉर्मेशन यहां से आई। एक और मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को, सर आपके जितने भी लैपटॉप हैं या जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें बारूद भरा हुआ है। समझ गए मेरा बारूद क्या है? उसमें सब इंफॉर्मेशन है, आपके बारे में भी, आपके क्लाइंट के बारे में भी, सबके बारे में। कोई भी चीज आपने उसमें चेंज करी है, ओवरराइट की है, डिलीट की है, आज तक कोई चीज डिलीट होती ही नहीं है, जितनी ओवरराइट हो ही नहीं सकती, सब रिट्रीव हो जाती है। द सिस्टम इज सो रिसीव दैट दे कैन रिट्रीव एवरी एंड एनीथिंग विच इज देयर इन द हार्ड डिस्क। आप सोचते मैंने तो डिलीट कर दिया, एक बटन दबाऊंगा सब डिलीट हो जाएगा। वो जमाने चले गए बटन दबाने वाले, वो तो उसी को आपकी हार्ड डिस्क को कॉपी करके ले जाएंगे और वहां पर बारूद को निकालकर आप ही के सामने रख देंगे। कोई चीज डिलीट नहीं होती। आपने बैलेंस शीट के टाइम पर अपने यहाँ इनकम वो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंजेस करी क्योंकि प्रॉफिट रिड्यूस कर दो, कि टैक्स कम दिया है तो चलो एडवांस टैक्स कम दिया है तो थोड़ा प्रॉफिट को कम कर लो, और आपने वहां चेंज किया तो आपसे पूछ लेंगे कि ये बताइए कैसे चेंज हुआ, व्हाट इज द रीजन। आपने फॉर्म 3CD भरा, टैक्स ऑडिट कराया, उसमें कई इंफॉर्मेशन आपने चेंज करी, पहले कुछ बनाया फिर कुछ बनाया, है तो कहां पर? आपकी कंप्यूटर पे है, और आपने डिलीट किया है, आपने ओवरराइट किया है, वो सब की सब इंफॉर्मेशन उनके पास है। कैसे है? उन्होंने एक इंटरनल गाइडलाइंस रखी है, अगर किसी पार्टी का सर्च होगा तो सीए का सर्वे जरूर होगा। ये मैं आज आपको बता दूं, सीए की बात कर रहा हूं। लॉयर से वो डरते हैं, लॉयर का सर्च नहीं करते हैं। हम ही शरीफ आदमी मिले हैं जिसका सर्च करने में सभी तक पहुंच जाते हैं, लॉयर का नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉयर को काम दे दो, हमें मत दो, क्योंकि आपका काम वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हर कंप्यूटर में बारूद है, नॉट फॉर क्लाइंट, अपना भी है। और क्लाइंट एक नहीं है आपके पास, एक का गया बाकी भी अफेक्टेड हो सकते हैं। यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन। सिंपल सर्वे करके आपके कंप्यूटर को पकड़ना है और किसी चीज का सवाल नहीं पूछना। पहले तो आपकी फाइलें ढूंढते थे, फाइलों में तो कुछ मिलता ही नहीं था, कहां फाइलें किधर का कहां है, कितना ढूंढेंगे। अब तो सिर्फ एक ही जगह है, हार्ड डिस्क पकड़ो, क्लाउन कर लो और बस हो गया काम, बाद में बात कर लेंगे आपसे। वक्त बदल चुका है सर, हर चीज आपके कंप्यूटर पे है। डिलीट जितनी मर्जी बार करें डिलीट होती नहीं, रिट्रीव होती है। और रिट्रीव करने वाले भी कौन है? हम ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बिग 4 को काम दिया जाता है इस हार्ड डिस्क का एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट दो, ले बताइए, हमें ही मारते हैं। मतलब बड़ी कंपनियां, उनको ये हार्ड डिस्क दे दी जाती है, प्लीज एनालाइज एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं सर, हार्ड डिस्क अगर आपकी लगी हुई है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं लॉयर को भी करूं हटा दो, तोड़कर जमीन में गाड़ दो, उसके ऊपर डायनामाइट बिछा दो। क्योंकि अगर सिर्फ तोड़ी और उनके हाथ में पकड़ी गई तो भी वो उसको रिट्रीव कर लेंगे, पानी में डाल दिया तो भी रिट्रीव हो जाएगा। उसको तो खत्म ही करनी है और अपने कंप्यूटर को सीधा कर लीजिए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहां बैठे हैं, पढ़ाई की है, हार्ड वर्क करा है पढ़ने के लिए। वी हैव नॉट डन एनी रॉन्ग थिंग। कोई सीए ऐसा नहीं हो सकता जो कहे मैं हार्ड वर्क के बगैर पास हो गया, ये तो मतलब ही नहीं। एंड वी आर नॉट देयर टू डू सच थिंग्स नाउ। नाउ कह रहा हूं, 100 चूहे खा के मैं हज को चला गया हूं। बात समझ गया मैंने क्या कहा है? 100 चूहे खा के मैं हज को चला गया हूं। अगर आपने 99 खाए हैं तो सिर्फ एक और खा लेना, उसके आगे मत बढ़ना, मत बढ़ना। मैं बता रहा हूं फंस जाओगे।
हमारा इंस्टीट्यूट भी बहुत हालत खराब में है, लफड़ा भी आ गया है, और भी कोई इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट को लिख दिया जाता है, टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दिस मैन। हमने क्या फांसी लगा दी है? पढ़ाई करी है, मेहनत करके पास हुए हैं और मेहनत करके काम कर रहे हैं। अब क्या करें जब क्लाइंट की कुछ दिक्कत होती है, क्लाइंट हमारे पास हमारी एडवाइस से नहीं आता, करने के बाद हमारे पास आता है, सर बचा लो। हम कहते हैं हम है ना देख लेंगे। अब देख भी नहीं सकते सर, क्योंकि अब तो फेसलेस असेसमेंट आ गया है। समझ में आ गया मेरा क्या कहना है? पहले तो था मैं हूं ना तो क्यों डरते हो, मैं करा लूंगा। अब किससे कराओगे? मोदी जी से करा सकते हो, और तो कोई करेगा नहीं। मैं और उन्होंने आज तक किया नहीं कुछ, मैं बताओ क्या करूं। वक्त बदल चुका है सर, सुधर जाइए। कुछ मुझे कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, HNS। मैं क्या, कैसे नहीं सुधरेंगे? सुधरना पड़ेगा, वक्त बदल गया। मैं क्लाइंट्स को भी कह रहा हूं सब, जमाना बदल चुका है और जमाने के हिसाब से चलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम वेरी स्ट्रांग। जब डिपार्टमेंट रोम मार के कह रहा है क्या है, हमें सब पता है आपके बारे में, कर लो ना। हम 148 है देकर आपको कहेंगे ये गलती है, ये गलती है, ये बताओ ये क्या है। तो सर इसलिए तो किया 148, इसीलिए तो पीरियड 6 साल का उठाकर 3 साल का कर दिया कि 3 साल तक है। बियॉन्ड 3 ईयर तो तब जाएंगे जब ईच ईयर 50 लाख और मोर का इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, तभी तो जाएंगे। लेकिन 6 का भी तो 10 कर दिया। गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। बताओ, हमने तो कहा 6 का 3 करे, बड़ी खुशी हुई, लेकिन हमें क्या पता, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। क्योंकि 3 नहीं है सर, 10 हो गए। 3 तो है ही है, और जिसने चोरी 50 लाख से ऊपर की करी हुई है उसके तो 10 तक जा सकते हैं। पहले तो 6 के बाद रिलैक्स हो जाते थे, कर लो जो करना है हमारा। अब क्या करोगे? अब 10 साल है सर, अगर इनकम इसके 50 लाख से ज्यादा है। मैं सर्च वालों को फायदा हुआ हमारे से ज्यादा, सर्च वालों को तो और फायदा हुआ। 6 साल का होता था और वो बाकी 4 साल का एग्रीगेट 50 लाख था। अब सर्च वाला का 3 साल कर दिया और बाकी 7 साल कर दिया, 4 के बदले 7 10 ही हैं, और उस साल का पर ईयर 50 कर दिया। पहले तो एग्रीगेट 50 था। तो सर्च वाले अच्छे हो गए और हम बेचारे बुरे हो गए, तो सर्च ही करा लेते हैं इससे अच्छा। तो I'm not able to understand what kind of a law they have made it. हाँ, सर्च में इंफॉर्मेशन तो उनके पास ऑलरेडी होती है, so there it is not 148A. In the case of search it is not 148A. सर्च के बारे में तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हाईएस्ट अथॉरिटी के पास आती है और उस इंफॉर्मेशन के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि उसको सर्च करना है कि नहीं करना। लेकिन इस केस में तो इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट, क्या वर्ड यूज किया? इंफॉर्मेशन in the possession of the AO which suggest that income has escaped assessment. रीजंस नहीं, which suggest। और वो सजेशन कहां से आई है? कहां से आई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। ऑडिट की बात तो छोड़ो, CAG की तो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन पर आपके अगेंस्ट 148A आया, और 148A में पहले वो नोटिस आया, उसको संभालिए। 148 में नहीं सेटिस्फाई हो सका तो 148 आएगा, और 148 के बाद 147 में आपको पकड़ लेगा। तो ये सिस्टम बनाया सर, और इतने एंटी अब्यूज बना दिए। आपको पता है 271AA-D जो डाला है, अब मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है, GST से शुरू हुआ और इनकम टैक्स में आ गया। शुरू तो GST से किया था ना। कोई फेक इनवाइस, फेक एंट्री, फेक चीज होगी तो GST वाले पकड़ लेंगे और प्रोसिक्यूशन भी करेंगे। GST वाले से शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? गलती तो हमारी भी है। 60,000 करोड़ का इनपुट क्रेडिट लिया गया विदाउट इनवाइस बीइंग, ऑल इनवाइस बीइंग फेक। 60,000 इनपुट क्रेडिट करोड़, 60,000। सर कमाल है, क्या दिमाग पाया है कि इतना अमाउंट का इनपुट क्रेडिट ले लिया उठाकर। सरकार करे तो क्या करे? GST में लाए, अब तो 270AD में क्या करा है? अगर कोई फेक इनवाइस, फेक इन्वेंट्री आपकी किताबों में पकड़ी गई तो 3 आदमी पेनलाइज्ड होंगे। एक नहीं, 3। एक जिसकी अकाउंट, जिसकी एंट्री में वो फेक इनवाइस है या फेक एंट्री है। What is fake? Invoice without delivery, that also is fake.
और देर इज इनवॉइस ओनली, नोट दैट इनवॉइस इटसेल्फ इज फेक, है ही नहीं, पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती और ऐसे ही फेक बनाया। यहाँ इनवॉइस तो है लेकिन डिलीवरी नहीं है। आपको तो पता है B2B B2C, समझ में आया? B2B B2C, जीएसटी में B2C कंज्यूमर को माल बिकता है लेकिन उसका बिल नहीं दिया जाता, वही बिल उठाकर B2B किसको दिया जाता है? दूसरे को दे दिया जाता है जो इनपुट क्रेडिट ले लेता है। आप बात समझे ना? B2C मटेरियल तो बिक गया मार्केट में जिसका देने की जरूरत नहीं है इनवॉइस, क्योंकि लोग डरते हैं इनवॉइस लेते, वो ये सोचते हैं इनवॉइस लोगों को तो जीएसटी लग जाएगा। उन बेवकूफों को यही नहीं पता जीएसटी तो ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा उन्होंने। हम आपको लेते बिल नहीं, बिल लोगे तो जीएसटी लगेगा, बिल नहीं लोगे तो ये रेट है, वो सारा ऑलरेडी इंक्लूड करा होता है उन्होंने, और हम बिल नहीं लेते, और नहीं बिल नहीं लेना, वो डरा देते हैं, बिल चला गया। अब जितनी सेल करी उसका बिल उठाकर उसको दे दिया और शेयरिंग कर ली इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट, और उससे क्या हुआ? अब ये में इनकम टैक्स में भी आ गया, वहां तो है इनकम टैक्स में 3 चीजें जिसकी किताबों में एंट्री पकड़ी गई, 100% पेनल्टी ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट, जिसने ये एंट्री दी 100%, बाकी बताऊं जिसने एंट्री दिलवाई, अब सारे हिल रहे हैं, किसने दिलवाई? उसका भी 100%। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब? बताओ, एक ही एंट्री के 3 आदमी पकड़े जाएंगे कल्प्रिट। 1 in whose books account that entry is found, 2 the person who has given you that entry fee is traceable, and 3 the person who got you that entry। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इन्वर्टेड कॉमा, समझ में आ गया कौन पर्सन है? तो हाथ जोड़ के विनती है, अब वक्त बदल चुका है, ये काम भी छोड़ना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई सर, लिंक हो गया है जीएसटी विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लिंक हो गया है एमसीए विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लिंक हो गया है। आप जितने भी फॉरेन विजिट करते हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है, किस पोर्ट से गए और कब वापस आए, एयरपोर्ट से गए, सी से गए, कहीं से गए, रोड से गए, उनके पास पूरी इमिग्रेशन के पास इंफॉर्मेशन शेयर होती है वहां पर। तो मैंने उनसे पूछा, आप मेरी इंफॉर्मेशन शेयर, मैं गया था यूएस से, जाते रहते हैं, मेरे बच्चे वहां हैं तो मैंने जाना पड़ता है। तो जब मैं वहां गया तो मैंने वैसे ही इनकम टैक्स वाले को पूछा, कहते हमारे आपको पता है कितनी बार विजिट गए? मैंने कहा दिखाइए। तो उन्होंने मेरा पैन नंबर डाला, डिटेल डाली, वहां पर मेरी क्या क्या चीज़ थी, मेरा नाम था, एड्रेस था, कितना मेरी असेसमेंट हो चुकी है, कितने अमाउंट पे हुई, कितना रिफंड है, कौन सा पेंडिंग है, सब ठीक है, मेरे पास कितने म्यूचुअल फंड है, मेरे कितने एफडीआर है, वो वाले एफडीआर भी जो लेस देन एक लिमिट के थे वो भी उनके पास डिटेल थी, मेरे पास कितने शेयर्स हैं सर, कंप्लीट डिटेल ऑफ दो शेयर, मेरे पास कितने म्यूचुअल फंड है। वो देखा तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड वाला जो मुझे भी नहीं पता था, 2 लाख रुपए का था। मैंने कुछ 15-20 साल पहले यूटीआई का म्यूचुअल फंड लिया था, ना पैन नंबर की इंपॉर्टेंस होती थी, एड्रेस वगैरह दे दिया, 20,000 रुपये जमा कराए थे, भूल गया, एड्रेस मेरा चेंज हो गया, मुझे याद ही नहीं था। वहां देखा 2 लाख रुपए, मैंने कहा ये तो मेरे पास डिटेल नहीं है। मैं वहां से डिटेल ले आया और म्यूचुअल फंड जाके 2 लाख का फायदा हो गया। मैं कहा ये तो मेरा पता ही नहीं था मेरे को कि ये है। उनके पास डिटेल है, मेरे पास डिटेल नहीं है। आपके पास कितनी एफडीआर वो डिटेल, आपके पास कितने शेयर वो डिटेल, म्यूचुअल फंड वो डिटेल, कितने फॉरेन विजिट मुझे बता दिया, इतनी फॉरेन विजिट, मर गया। कितनी इंडिया विजिट, मैं कहा वो क्या कर रहे हैं? कहता जो ज्यादा इंडिया ट्रेवल करता है उसकी आप 242 टाइम्स ट्रेवल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। उन दिनों में बहुत लेक्चर देने जाता था, कोविड नहीं था, तो 242 टाइम, मतलब 121 गोइंग एंड 121 कमिंग बैक टू दिल्ली। उसके बाद कंप्लीट डिटेल। और मैंने कहा मैंने तो एक पैसा भी नहीं खर्चा, ये तो ब्रांच वाले भेज देते हैं टिकट और मैं आ जाता हूँ, और कल तो तुमको कि होटल में भी ठहरे, वो भी वही ठहराते हैं, मुझे तो पता नहीं है। कहते हमें नहीं पता, वो आप बताना, लेकिन आप 242 टाइम गए थे। मैं कहा मर गए, ये भी डिटेल आपको पता है हमारे पास। ये सबके लिए नहीं जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं। मैंने फॉरेन विजिट में एक चीज बताई है, मैं गया दिल्ली, न्यूयॉर्क, दिल्ली, टिकट तो मेरी वो थी। उस न्यूयॉर्क के बाद मैं कई जगह जाता हूँ घूमने, मैं लास वेगास चला गया, मैं बॉस्टन चला गया, मैं कैलिफोर्निया चला गया, मैं इधर चला गया, वो आपको कैसे पता लगेगा? कहते चिंता मत करो, आप ही बताते हैं। मैं क्या बताते हैं? कहते आप जाते हैं वहाँ फोटोएं खींचते हैं और फेसबुक में डाल देते हैं। कहते हम भी लिखते हैं आई लाइक इट, वो लाइक कर रहे हैं आपकी फेसबुक की फोटोएं।
उनको पता लग रहा है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी उनके पास डिपार्टमेंट है। मर गया, मैं क्या मर गया। अरे लेडीज हैं, शादी में जाती हैं स्टडेड विद डायमंड ज्वेलरी, पर्ल्स, ये वो, और अगले दिन फेसबुक में डाल देती हैं। और वो क्या लिखते हैं? वी लाइक इट मोर। वो लाइक कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल मीडिया में, ये इंफॉर्मेशन आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार क्या जमाना होता था, जब फैक्ट्रियों में प्रोविडेंट फंड ईएसआई वाले होते थे, तो वो क्या करते थे, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते थे लोगों का कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, क्या प्रोविडेंट फंड नहीं है, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ईएसआई नहीं है, तो कहां से पकड़ते थे? आपके एडवर्टाइजमेंट जो अखबारों में आते थे, फिर आपकी कंपनी में जाके कहते थे दिखाइए क्या है, देखिए लिंक देखिए कहां से कहां होता है। वो कहते हैं हम आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। मैम मर गए, यह तो वहां की भी पूरी है। ट्रैवल आप फॉरेन करें, 10 बार करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ गए ना क्या करना है, पूरा अकाउंट फॉर करके रखिए। पूरी इंफॉर्मेशन फॉरेन ट्रैवल की उनके पास है। अब तो वैसे भी पैकेज टूर में जाएंगे तो टीसीएस भी कटना शुरू हो गया, वो तो आपको पता ही लग गया, पहले तो नहीं था। ये सारी एंटी अब्यूज प्रोविजन है टीसीएस। लोग क्या करते थे सर, ये बच्चे फॉरेन में पढ़ते थे, कितना पैसा बाहर जाता था फॉरेन की एजुकेशन के लिए, और उसमें 80% लोग वो थे जिनकी कभी रिटर्न ही नहीं गई, ये मुझे दिखाया गया। और फॉरेन में इतना पैसा ट्रांसफर किया और बच्चों को पढ़ाने में और करने में, रिटर्न कभी नहीं। यहाँ वहां पर $2.5 लाख भी अलाउड थे तो वो भेज देते थे। मैंने कहा क्या मतलब? कहते उनको मतलब पैन नंबर नहीं है और वो जाके इतने पैसा खर्चते हैं। क्या एग्रीकल्चरिंग तो अब उन्होंने वो भी टीसीएस कलेक्ट कर दिया। आपको पता ही है 5% टीसीएस और रेमिटेंस बाय अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस की एलआरआरएस में अब आपको वो भी 5% टीसीएस कटता है। पर्पस 5% का नहीं है, पर्पस क्या है? पर्पस इज डेटा कलेक्टेड बाय देम कि आप फॉरेन विजिट पे भी गए, आपने ये पैसा बाहर भेजा है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो टीसीएस कटेगा। तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक जगह टीसीएस कम कर दिया। तो हमने कहा कि लोन लेके अगर बेचारा गया है और आप उसका 5% कहां से पाएगा, पहले पढ़ाई के लिए लोन लिया, तब उन्होंने उसको कम कर दिया 0.5, बाकी तो 5% ही है। एंड आई एम टेलिंग यू द पर्पस इज कंप्लीट डेटा माइनिंग अबाउट यू, एंड दैट इज फेड टू द मशीन्स, एंड मशीन एनालाइज करके आपका फंड फ्लो करके सैलरी का वो बनाकर आपके पास आ रहा है। तो इसलिए ये 148A चेंज हुआ, इसलिए वो 3 साल का कर दिया कि कोई बात नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है और 7 साल तो हम जा ही सकते हैं। और तो ये पर्पस इन्होंने निकाला है। और हम सोचते हैं कि यार ये तो 6 का 3 हो गया। 3 नहीं हुआ सर, बहुत इंफॉर्मेशन उनके पास है। सो प्लीज बी केयरफुल। आई एम टेलिंग यू, इतने प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। मैं गार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गार तो 3 करोड़ के ऊपर है, कोई टैक्स प्लानिंग करो, गार तो 3 करोड़ है। लेकिन उन्होंने इतनी चीजें डाल दी हैं कि आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव वेरी टफ टाइम इफ यू आर डूइंग योर। अगर आप गलत काम करेंगे, आटे में नमक चल जाएगा, नमक में आटा नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, आटे में नमक हल्का चलता है, यहाँ तो नमक ही नमक होता था। आप समझ गए ना मेरा क्या कहना है। वक्त बदल चुका है, लेकिन आदमी ऑनेस्ट होना चाहता है, लेकिन इन्होंने फिर बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिविजुअल के केस में जो सरचार्ज 37% कर दिया ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 करोड़, 37%, 25% अमाउंट एक्सीडिंग 2 करोड़। ये कोई बात है? जो टैक्स देना चाहता है आप उसी को मारेंगे। वक्त बदल चुका है। आपको देखिए, जब एक्साइज ड्यूटी वगैरह 40%, 50%, 80%, 100% हुआ करती थी तो चोरी ज्यादा होती थी। जब एक्साइज ड्यूटी 12.5% हुई थी और इनपुट क्रेडिट भी मिलता था, तो हम सोचते थे 3-4% जेब से देना है, तो चलिए बेईमानी बंद कर। जीएसटी में भी तो यही सोचा कि हमें तो इनपुट क्रेडिट मिल जाना है और इधर से अगर आउटपुट बिल दे दिया तो जब जेब में से 3-4% देना है, और वो भी मुझे अपनी जेब से थोड़ी देना है, रिकवर करके देना है। लेकिन वक्त ने देखिए करवट क्या बदली कि इंडिविजुअल एचयूएफ को अननेसेसरली आप 5 करोड़ से ऊपर 37% टैक्स लगाएंगे तो चोरी नहीं होगी। तो क्या होगा, बड़े बड़े जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब या तो एनआरआई बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग एनआरआई।
और तभी एनआरआई का भी प्रोविजन चेंज किया कि यू कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 190 डेज, इफ यू स्टे हियर फॉर 120 डेज एंड अबव, तो फिर आप क्या माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये क्यों कर रहे हैं सर? हर आदमी नॉन रेजिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है दो कारण से, एक तो टैक्स, और दूसरा अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको कंप्लीट फॉरेन एसेट्स, फॉरेन अकाउंट्स और फॉरेन की डिटेलें देनी पड़ती है इन योर रिटर्न ऑफ इनकम, एंड इफ यू डोंट प्रोवाइड दैट, ब्लैक मनी एक्ट विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब तो जितने भी रेजिडेंट हैं सब इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते? वो F1 जो कॉलम है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ योर फॉरेन अकाउंट, फॉरेन जहां पर आप अकाउंट में रखे हुए हैं, या फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन ट्रस्ट हैं, जहां बेनिफिशियरी हैं, सारी डिटेल देनी पड़ती हैं, नहीं तो मनी लॉन्ड वो आपको ब्लैक मनी एक्ट में सिर्फ 10 साल की कैद है, सिर्फ 10 साल की कैद, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, सिर्फ 10 साल की कैद। तो क्या होगा? इसलिए सब जिनका बाहर एसेट्स थी सब नॉन रेजिडेंट बन रहे हैं, क्योंकि इफ यू आर ए नॉन रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री, यू डू नॉट हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ योर फॉरेन होल्डिंग्स या फॉरेन एसेट्स या फॉरेन। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैंने कई बार कहा, हमारी अप्रोच डायरेक्ट तक नहीं थी, मोदी जी तक नहीं थी, लेकिन नीचे तक तो थी। कई बार कहा ये क्या कर रहे हैं सर, मत करिए, लेकिन देखिए एक सरकार दूसरी सरकार को कैसे धोखा देती है। हमने ये रिकमेंड किया था, दो चीजें बताता हूं। हमने एक रिकमेंड किया था, ठीक है आपका रेवेन्यू बढ़ाना है, वैसे तो स्लैब रेट ठीक है 5%, वो ठीक है, वो न्यू रिजीम छोड़िए, 5%, 20%, 30%, न्यू रिजीम में तो अलग अलग रेट है, वो बताऊंगा क्या है। 30% सरचार्ज इतना ही रहने दीजिए, सरचार्ज मत बढ़ाइए, एक स्लैब या सरचार्ज हटा दीजिए, क्योंकि सरचार्ज हटाना चाहिए, बार बार सरचार्ज क्यों, और एक और स्लैब बना दो एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर 35%, 35%। सर हमारी सजेशन मान ली गई और वो बजट में जा रहा था 35%, बट नॉट अबव 5 करोड़, अबव 2 करोड़, अप टू 2 करोड़ 30%, अबव 5 करोड़ 35%। सरचार्ज वही, वैसे तो सरचार्ज हटाने के लिए कहा था, चलो 10 या 15%। किसी ने रात को कहा जब बजट प्रिंट हो रहा था कि देखिए आपने ये 5% तो बढ़ा दिया है, लेकिन आपको फायदा नहीं होना है। क्यों नहीं होना? जो भी इनकम टैक्स आता है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो आप पता है, आप फाइनेंस को, क्योंकि अबाउट 2/3 स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है और 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, इवन इनडायरेक्ट टैक्स भी और डायरेक्ट टैक्स भी। ये सिस्टम है सर। इनडायरेक्ट का तो सिस्टम अलग भी हो गया अब तो, क्योंकि जीएसटी आ गया, अदरवाइज ये होता था। तो उन्होंने कहा आपको फायदा क्या होगा 5% करके? तो किसी ने से पूछा क्या करना चाहिए, कहते हैं जी सरचार्ज लगा दो। सरचार्ज तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इन्होंने उठाकर 30% के स्लैब रख दिया, 35 हटा दिया, और सरचार्ज 25% अबाउट 2 करोड़ एंड 37% अबाउट 5। ये एक सरकार दूसरी सरकार को धोखा दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले जाए। अब ये तो सोचिए आप एक ऑनेस्ट आदमी को कि क्या करने जा रहे हैं। ये तो इनहेरिटेंस टैक्स जो आना था वो तो हर साल आप ले रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स से तो हो गया सर, 5 करोड़ से ऊपर अमीर आदमी इनहेरिटेंस टैक्स है वो आपको लम सम में देना था जब मरेगा। आपने तो जीते जी उससे ले लिया कि ला भैया 42.74% दे दे हर साल। कितना? 42.74। तभी तो प्लानिंग करा रहे हैं ये हमारे सारे प्रज्ञेश जी भी प्लानिंग कराते हैं, नहीं 5 करोड़ से नीचे कर लो, 2 करोड़ से नीचे कर लो, बेटों को गिफ्ट दे दो, इसको कर दो, उसको दे दो। मैं कहता हूं बेटों को गिफ्ट तो देनी ही नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं उतनी गिफ्ट दीजिए, बच्चे हमारे हैं, उतनी गिफ्ट दीजिए जितनी उनको काम में सेट करना है। अगर आपने अपना सारा पैसा बेटों को दे दिया तो फिर अडल्ट होम में अपना रूम बुक करा लीजिए, ये पहले बता दूं। क्योंकि अब तो मेरी बात पहले कहा करते थे, अब तो जो जज रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उन्होंने भी कह दिया सन इज ए सन टिल ही गेट्स ए वाइफ, डॉटर मीन्स डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। ये मैं आपको बता दूं, बेटा तब तक ही बेटा है जब तक बीवी ना आए। अगर उसके बाद भी वो बेटा रहा तो फिर आपने मोती दान किए होंगे किसी जमाने में, अदरवाइज तो जमाना बदल चुका है।
ये मैं बता दूं, बच्चों को जरूर दीजिए, लेकिन उतना जितना रिक्वायर्ड है उससे ऊपर मत दीजिए। उनको कहिए तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं, आपकी सेवा करेगा, बहू भी सेवा करेगी और खूब करेगी, ये इंतजार करते रहेगी कब जाएगा, लेकिन जाएगा तभी जब ऊपर वाला ले जाएगा। इज्जत तो रहेगी। पैसा हाथ में है तो आपकी वैल्यू है, पैसा निकाल दिया कोई पूछने वाला नहीं है। गौतम सिंघानिया और मधुपर सिंघानिया और विजयपर सिंघानिया का केस तो सबको मालूम। वक्त बदल चुका है सर, बच्चों को मत दीजिए। वो जमाना आ गया था, पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो धन संचय करो, अपने पास रखो, जब तक आप हैं आपकी इज्जत रहेगी, आपसे पूछा जाएगा। जिंदगी में हमें यू देने का सिस्टम आना चाहिए। जिस दिन यू हो गया ना हाथ आपका तो आप मारे जाएंगे। बच्चे भी नहीं देते, वक्त बदल चुका है। बुरा नहीं मानना, यंग लोग मुझे कहेंगे, लेकिन सास भी कभी, बहू भी कभी सास बनेगी, चिंता क्यों करते हो, या सास भी कभी बहू थी। मैं वही सोचता हूँ, वही लड़की जो अपने माँ बाप का ध्यान रखती है। मेरी भी लड़की 3 बार मुझे फोन करती है डेली, क्या हुआ, माई वाइफ एक्सपायर्ड 5 years बैक, 3 बार टेलीफोन आता है। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा जरा नीचे भी इकट्ठे ही रहते हैं, अपने उधर वालों को भी जरा पूछ ले। देखा है विडंबना, बाप को 3 बार फोन आएगा, लेकिन ससुर को 1 बार भी कर लेंगे और सास की तरफ यूं हाथ होता है। ये मुझे तो समझ में नहीं आई, ये क्या विडंबना है। वही लड़की जो अपने माँ बाप की इतनी याद रखती है, वही लड़की बेटे के माँ बाप की चिंता ही नहीं करती। वो कहती कहाँ मुसीबत मेरे लिए आ गई, और वही जब सास बनती है तो उसके साथ भी वही हाल होता है। ये वक्त पता नहीं क्या है, ये क्या विडंबना है इस कंट्री में या वर्ल्ड में। वर्ल्ड ओवर है, सास तो हमेशा ही गलत मानी जाती है वर्ल्ड ओवर। कहीं चले जाओ, अमेरिका में भी यही है, लेकिन वहां सिस्टम है, अलग अलग रहते हैं, सिर्फ वंस इन ईयर मिलते हैं। वो जब एक पर्टिकुलर डे होता है तब एक जॉइंट फैमिली अफेयर होता है, अदरवाइज दूर रहते हैं। वक्त तो यहां भी शुरू हो गया है। हमारे यहाँ कल्चर थी, अब तो एग्रीकल्चर ही रह गई है, कल्चर कहाँ रह गई। वक्त बदला और इतनी जल्दी बदला, मुझे नहीं पता था। बहुत वक्त, मैं भुक्तभोगी नहीं हूं, कभी सोचोगे इनके साथ रोज होता है। अरे मेरा बेटा ही नहीं है तो मुझे कहाँ होना है। जिनका होता है उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हो? क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सर एक बेटा है एक आदमी का, करोड़ों है, एक ही बेटा है और कोई बच्चा ही नहीं है, और बेटा बाप की कंपनी में कमीशन खाता है, कमीशन ले रहा है परचेज में। अबे मैंने कहा तू क्या हो रहा है, सारा पैसा तेरा ही तो है और किसके पास लेके जाएगा? कहता बाप पूरे पैसे नहीं देता खर्च करने के लिए। मैंने उसे कहा भैया इसको और दे दो। कहते इतने पैसे देता हूं, ये उड़ा देता है दोस्तों में, ये करता है और मैं इसलिए नहीं देता। मैं कहा फिर क्या हुआ? वो कमीशन खा रहा है। बताइए, ये जमाना आ गया। मतलब एक ही बेटा एक ही कंपनी में काम करता है और वहां पर भी बाप की कंपनी में आप भी वही हैं, परचेज वालों से कमीशन खाता है। जब वो कमीशन खाएगा तो परचेज भी तो महंगी मिलेगी। ये बताइए, ये वक्त आ गया है। कभी सोचा था ऐसा वक्त आएगा? हमने नहीं सोचा था। हम पुराने विचार के हैं। मैं तो उस जमाने का हूं जिस जमाने में ऐसी चीजें नहीं होती थी। हम तो सैंडविच सोसाइटी हैं। मैं तो माँ बाप से भी डरता था, और आप बता दो आप सब बच्चों से भी डरते हैं। कोई आदमी खड़ा होकर यहाँ के कह दे मैं अपने बच्चों से नहीं डरता। कोई बोलो ना जरा, कोई बोलो नहीं अपने बच्चों से नहीं डरता। देखियो किसी की आवाज आ रही है। ये हालत हो गई है, हम अपने बच्चों से डरने लग गए। हमें तो माँ बाप से भी डरना पड़ता था और बच्चों से भी डर रहे हैं। क्या वक्त आ गया। और बच्चों को पता है कैसे आपको एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि एक बेटा या 2 बच्चे, इसके ऊपर तो किसी के है ही नहीं। आजकल तो एक का ही रिवाज हो गया है, और तो वो बच्चों से डरते हैं। और बच्चों को पता है कैसे बाप का पैसा को एक्सप्लॉइट करके लेना है, कभी माँ के थ्रू लेना है या किसके थ्रू लेना है, उनको सब कुछ पता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वक्त बदला और इतना जल्दी बदलेगा मुझे नहीं पता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इस जमाने के, बहुत अच्छी भी चीजें इस जमाने में, मैं ये नहीं कहूँगा। हमारे जमाने में तो था ही नहीं। आई एम 75+, लेट मी टेल यू, आई एम 75+। कहते लगते नहीं, तो मेरी गलती है नहीं लगता तो मिलता हूँ। एंड आई वर्क 365 days a year। संडे को भी काम करता हूँ, आज छुट्टी का दिन भी करूँगा, कल भी मेरे को करूँगा। लेकिन
आजकल का बच्चा हार्ड वर्क नहीं करता है, हार्ड वर्क करने में उसकी जान जाती है। सब मशीन से काम चल रहा है, सब कंप्यूटर से उससे काम हो जाए या मेरे पास नीचे असिस्टेंट हो जाए। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अब आपको बदलना पड़ेगा सिस्टम को। पे टैक्स एंड एंजॉय लाइफ। मैं कोई डिपार्टमेंट से नहीं आया, मैं डिपार्टमेंट से नहीं आया। हाँ, तो उस जमाने का आदमी हूं जब 97.5% टैक्स होता था हाईएस्ट स्लैब में, 97.5%। उसके बाद वेल्थ टैक्स होता था, उसके बाद गिफ्ट टैक्स होता था, और मरने के बाद स्टेट ड्यूटी भी देनी पड़ती थी। और कई बार 100 रुपये कमाओ 105 रुपये टैक्स देने पड़ते थे। उस जमाने के हम में 9 तो चोरी तो करनी पड़ती। ये तो फ्रॉम 97.5% was brought to 70%, from 70% brought to 60, from 60 it is brought to 50, and from 50 it has been brought to 30%। लेकिन फिर वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं, 30 से सीधा 42% चल गए। यही मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, ठीक कर लो। वक्त 30% देने के लिए लोग तैयार हैं, उनसे टैक्स लीजिए, ज़्यादा कलेक्शन होगी। पहले कलेक्शन नहीं होती थी। Will be more collection, people will become more honest। और इस वक्त तो जमाना ऐसा आ गया है कि सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। टैक्स दो, जान छुड़ाओ, ना भाई टैक्स है, ना गिफ्ट टैक्स है, ना स्टेट ड्यूटी टैक्स है। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। गिफ्ट टैक्स भी है तो इनडायरेक्टली है ना, रिलेटिव का तो कोई गिफ्ट नहीं है ना, तो क्यों नहीं करते? बट कई बार ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, टारगेट दिए जाते हैं, उस टारगेट को बढ़ाने के लिए कि रेवेन्यू को इतना 12,000 करोड़ चाहिए, 14,000 करोड़ चाहिए, वो रास्ते ही ढूंढते रहते हैं और बेड़ा गर्क कर देते हैं इनकम टैक्स का। ये गिफ्ट, ये जो आपको बताऊं डिविडेंड, लास्ट बोलूंगा सर, टाइम मेरे को टाइम बता दीजिए। हाँ, डिविडेंड टैक्स आपको पता है पहले कंपनी देती थी, क्या परसेंट था? अप्रोक्सीमेटली 20 सम ऑड अमाउंट, 20% टीडीएस कट जाता था। मतलब टीडीएस नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे हो जाता था। हमारे हाथ में 1034 में एग्जेम्प्ट था। जब हम लॉ बना रहे थे तो उन्होंने कहा अब तो हमारे पास कंप्यूटर शिंटर सब आ गया, अब हमें इंफॉर्मेशन है किसको कितना रेवेन्यू मिलता है डिविडेंड का, तो लेट अस शिफ्ट इट टू दी रिसिपिएंट हैंड्स। जो ओल्ड कन्वेंशनल सिस्टम था, डिविडेंड वाज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड वाज नॉट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। हमने कहा नहीं सर, सिस्टम बढ़िया चल रहा है, आप क्यों करने चाह रहे हैं? क्योंकि 10 लाख के बाद तो वैसे भी टैक्स है, टोटल डिविडेंड 10 लाख से ऊपर मिलेगा तो वैसे भी टैक्स है, 115 BBDA में है, और 10 से नीचे ठीक है, तो आपको तो टैक्स मिल गया। एक आर्गुमेंट दिया गया जिसको हमें कन्विंस कर दिया। आर्गुमेंट ये था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर से पैसे, फॉरेन एंटिटीज, फॉरेन कंपनीज, FDIs वाले जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट इन देयर हैंड्स, अर्लियर मैं कह रहा हूं, और बिकॉज टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी। जब वो डिविडेंड यहां एग्जेम्प्ट है तो उनकी अपनी कंट्री पे उस डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है, बीइंग रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि फॉरेन इनकम पे टैक्स देना है। क्योंकि इंडिया में आपने कोई टैक्स नहीं दिया तो वहां पर वो पूरा टैक्स ले लेते हैं, फॉरेन क्रेडिट देते नहीं है। वो कहते हैं टैक्स आपने नहीं दिया है, वो तो कंपनी ने दिया है, हम आपको क्यों इसका क्रेडिट दें? ये सिस्टम था। तो उन्होंने कहा सर बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है हमारी कंट्री में, यहाँ FDIs नहीं है, वो कहते हैं हमें डबल टैक्स पड़ रहा है ऑन डिविडेंड। एक तो यहाँ की कंपनी ले लेती है 20% और दूसरा हमें जाकर अपनी कंट्री में देना पड़ता है। एक काम करते हैं, रेसिपिएंट के हाथ में टैक्स कर देते हैं। जब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो डिविडेंड देगा, तो ऑन द रिसीट कितना देगा? वहाँ पर इतना नहीं है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम 115A में 20% है, और कई तो ट्रीटीज में 10 या 5 है। वो कहते हैं जितना भी टैक्स यहाँ देगा उसका क्रेडिट उसको फॉरेन कंट्री में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ टैक्स दिया, फॉरेन कंट्री में क्रेडिट मिल गया, तो यहाँ कोई उसको ज्यादा टैक्स नहीं लगा, उसको तो उतना बेनिफिट मिल गया। अभी तो 2 जगह टैक्स देना पड़ रहा। हमने लॉजिक समझा और ये सोचा यार एक कंट्री के लिए, मैंने कहा मेरे को भी 7-8 लाख रुपए का डिविडेंड आता है, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, 30% के स्लैब में तो मुझे देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। हमने वाया मीडिया निकाला कि एक काम करते हैं, ओके हम 20% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे सबको, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन दिस, कि भैया 30% में 20% हो गया, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में 30% की है ना, तो
वो 21% टैक्स पर, तो 30% देंगे, चलो 24% है, मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, चलो ठीक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दी हैंड्स ऑफ दी शेयर होल्डर। हमारी बात मान ली गई, बड़ा खुश हुआ, चलो भाई चलो कंट्री के लिए काम किया, अच्छा किया। जब बजट आया मर गए, देखा कि वो 20% रिडक्शन तब मिलेगी जब आप मनी बोरो करोगे और उसका इंटरेस्ट पे करोगे, और वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड। अब मैंने कहा ये कौन सा है, आप इन्वेस्टमेंट क्या बोरो करके करते हैं? मैं इन्वेस्टमेंट क्या बोरो करके करता हूं? मैं तो ट्रेडर हूं, मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं टैक्स दे रहा था 0, और क्योंकि 20% लगता था। अब मुझे कितना टैक्स लग रहा है सर? 30% प्लस 15%, क्योंकि यहां पर भी कंट्रोल कर लिया, नहीं तो पहले तो 37% था, 34.5% प्लस 4%। बताइए 20 के बदले 17% और हो गया। 8 लाख पर 1,36,000 में मेरा टैक्स की लायबिलिटी बढ़ गई। तो मैं क्या करूंगा? अरे ये क्या है, आप ही बनाया है, गए थे कि चलो फायदा करेंगे, तो नुकसान हो गया। सो पीपल, यही मैं कह रहा हूं, अगर एक सजेशन लेते हैं तो उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करें। आपने इंप्लीमेंटेशन में वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन ना देकर लोगों को मार दिया। अब आपके पास डिविडेंड आता है, आपको 30% देना पड़ेगा। पहले तो 30 नहीं देते थे, अब उसके ऊपर सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर एजुकेशन भी लगाना पड़ेगा। क्या फायदा हुआ? बताइए क्या फायदा हुआ? डोमेस्टिक तो फॉरेन की कॉस्ट में डोमेस्टिक मारेगा, और डिविडेंड तो पैसे वालों को ही आता है, गरीब आदमी को थोड़ी आएगा। कहता हूं देखिए जिनका 5 लाख से कम में उनका 5% पड़ेगा। मैं कहूं उनके पास पैसे कहां होते हैं इन्वेस्ट करने के जो 5 पड़ेगा? 5 लाख कमा के शेयर में लगाएगा। वाह भाई मेरी बात सुनो, ये क्या हेराफेरी करते। अब वो नई रिजीम निकाल दी, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, लेकिन क्या कहा? कुछ भी तो मिलेगा नहीं डिडक्शन, ना एटीसी ना एटीडी, ना कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको सैलरी वाले हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, एचआरए नहीं मिलेगा। अबे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टैक्स ही देना है तो क्या फायदा होगा? हाँ जी आपको इतने साथ फायदा देकर दिया। मैंने कहा हर आदमी एटीसी लेता है, इसी बहाने तो जुड़ जाता है। जो 1.5 लाख रुपया हम जोड़ते हैं, कैसे भी जोड़ते हैं, जुड़ तो रहा है ना, काम तो आएगा ना। अब आप कहते हैं उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मैं क्यों जोड़ूंगा? आपको 80D मेडिकल का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मैं क्यों जोड़ूंगा? आपको 80DD नहीं मिलेगा तो मैं क्या जोड़ूंगा? अरे डोनेशन दूंगा तो भी नहीं देगा। अरे देगा क्या? कुछ नहीं देंगे सर, टैक्स दे दो आप हमें। तो क्यों करेगा आदमी? वक्त ये है कि वो एक साइड का सोचते हैं, रेवेन्यू बढ़ाओ, विदाउट रियलाइजिंग कि इसमें नुकसान हो रहा है। आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, टारगेट पूरे कर रहे हैं, लेकिन आप फिर अपने एसएससी को डिसऑनेस्ट होने की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये वक्त खराब है सर, मैं कहता रहता हूं, लेकिन अब क्या कहें, जो आदमी था हमारे सुन लेता था वो नहीं है, और जो आजकल है उसको सुनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हेड। थैंक यू। Thank you very much, respected Ahuja sir. We open a very short question answer session. I request questions to be floated on any section of the Income Tax Act. Any questions? Yes, please. Mr. Modi. कौन है? Mr. Modi. Akshay Modi. नाम आते ही मोदी। Good afternoon, sir. Good evening. Sir, the old 148 section has been substituted by the section 148A. So, sir, I want to understand the meaning between the omission of a section and substitution. And सर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट तो मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है, व्हेन इट इज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड आफ्टर दिस डेट। शैल बी सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है पुराना लॉ डेड हो गया आफ्टर दैट डेट, यही तो कहा है। तभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन आपके फेवर में दिया है, एनी नोटिस इशूड आफ्टर 31 मार्च 2000, वही जो 21 इज नॉट वैलिड, जो आपको दिया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ ने आपके फेवर में जजमेंट दी थी, अगेंस्ट दी थी, लेकिन अब इंतजार कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आने वाली है। क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इतनी जगह स्टे मिला हुआ है, इतनी जगह है, सबको कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट में ले आइए। अभी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दी है।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने परसों ही कहा, जब तक हमें ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा हम तो अपनी जजमेंट देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। अगर दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट हमारे फेवर में आ गई तो चिंता मत करो कि आप बच गए, चिंता मत, नहीं खुशी ना लेना, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस लाकर नया सेक्शन 148A में पावर लेकर आपके ऊपर वो केस लगा देंगे जो पुराना केस है, चाहे वो 6 साल से पुराना है वो आ जाए। बात समझने क्या है, कल ही मेरी बात हुई डिपार्टमेंट से, मैं कहा अब तो हार गए, अब तो सीधे हो जाओ। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में जीते थे, बड़े खुश हो रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपके अगेंस्ट जजमेंट दे दी है। कहते हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं कहा दिल्ली हाई कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट देने के बाद कि उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स दी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सब्सटेंसिव लॉ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से चेंज नहीं किया जा सकता। सब्सटेंसिव लॉ तो यही है ना कि नो नथिंग आफ्टर 31 मार्च 21, तो आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नोटिफिकेशन लाकर कैसे कर देंगे? और ये जीत गए तो कहते क्या हुआ, हमें तरीका आता है, हम पार्लियामेंट में जाकर या ऑर्डिनेंस जाकर बदल देंगे। उसके बाद क्या जवाब देंगे? हमारे हाथ में पावर नहीं है। वो कह रहे हम तो बदल देंगे, तो ज्यादा खुश नहीं होना, शॉर्ट लिव्ड है, इंतजार कीजिए, कल दिल्ली हाई कोर्ट का, कल या परसों में, फिर सुप्रीम कोर्ट ले ना ले, इन्होंने तो चेंज कर ही देना है पुराने लॉ। लेकिन सर 3 साल का जो टाइम है, तो सर उसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाके भी कर सकते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कौन कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव ला रहे हैं? इसके पहले लाएंगे सर। जो आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन में नवंबर 2016 में हुआ था, और 115 BBE कब लाए थे? 1/4/2016, याद है? इसे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं मान रहे, वो तो सेम ईयर से एप्लीकेबल किया, सेम असेसमेंट ईयर से, और उसका टैक्स 30% से निकालकर 75% प्लस सरचार्ज एजुकेशन तक लगाकर 77.25 कर दिया था। इस साल 45(4) और 9B आया है रिटायरमेंट का और डिसोल्यूशन का, देखा है क्या लिखा है उसमें? एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22, नॉट 22-23, इमीडिएट इफेक्ट से कर दिया 21-22 से, ताकि आप कोई प्लानिंग ना कर सको कि आप पहली डेट थोड़ी देर पहले रिटायर कर दो। फरवरी में लॉ आया, मार्च के तक तो आप कर सकते थे ना, उन्होंने वो भी रोक दिया कि 1 अप्रैल से आया। श्रम सेल का लॉ आया 50B, उसको भी ये कह दिया एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22, नॉट फ्रॉम 22-23। सो इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, तो इसलिए पंगे लेने का कोई फायदा नहीं है इनसे। ये सरकार है और सरकार कुछ भी कर सकती है, सीधी सीधी बात। मैं क्या Sir, recently Supreme Court has given one order, cognizance for extension of limitation. This extension has been given across the acts. It is applicable to all other acts. Extension has been given with effect from 15th March 2020 to 3rd of October 21. How far it is applicable to Income Tax Act? My first question. देखिए, इनकम टैक्स ने अपना एक लॉ निकाला था, टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2019, याद आया? वो जो ऑर्डिनेंस आया था, और ऑर्डिनेंस के बाद अमेंडमेंट एक्ट आया था। टैक्सेशन ये क्या सर, अमेंडमेंट रिलेटिंग टू टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट, और उसमें वहां पर उन्होंने डेटें दे दी थी कि इस डेट के इस डेट में बीच में होगा, तो अक्रॉस हम इस डेट को एक्सटेंड कर देंगे। याद है? जब उसका स्पेसिफिक लॉ आ गया तो वो उस स्पेसिफिक लॉ में आएगा, बाकी जो उसमें नहीं है लॉ वो सुप्रीम कोर्ट के लिए। So means this Supreme Court order is not applicable to Income Tax Act. Applicable to Income Tax Act. Yes. Okay. Sir, my next question, which is not related to our topic. सर, ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है टैक्सेशन की विदाउट ATC 22% इन कंपनीज, हैव यू गॉट एनी आइडिया ऑफ एनी डेटा हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी कंपनीज हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ इट? ऑल कंपनीज विल गो टू 22%। क्यों नहीं जाएंगी सर? एक चीज बताइए, जो भी वेटेड डिडक्शन साइंटिफिक रिसर्च की मिलती थी खत्म हो गई, एडिशनल डेप्रिसिएशन एक नहीं मिलेगी। मेरी बात को सुन लो, जो बेनिफिट इंसेंटिव मिला करते थे ATIA, ATIB, ATIC, ATID बहुत लिमिटेड रह गए। 35AB, AD वगैरह सब लिमिटेड हो गया। तो
So most of the companies other have gone and shifted to 115 BAA, paying tax at the rate of 22% plus surcharge 10% plus 4%, amounting to 25.168%. अभी तो 30% था, और जब 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होता था पिछले साल का तो 25% प्लस सरचार्ज होता था. तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव शिफ्टेड टू 22. यस, जो 15% वाला है उसमें कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको पता ही है. न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, एंड इफ यू सेटिस्फाई सर्टन कंडीशन तो 15% है. 15 नहीं है, 10% सरचार्ज भी मैंडेटरी है और 4% भी मैंडेटरी है, विच अमाउंट्स टू अबाउट 17%. ये हमने नहीं किया है, ये इंटरनेशनल हुआ है सर, हमें करना पड़ा है क्योंकि अमेरिका में भी 17% टैक्स कर दिया. कॉर्पोरेट टैक्स हर जगह पे कम हुआ है. कॉर्पोरेट टैक्स तो कम हुआ, आप कहेंगे फर्म को क्यों कम नहीं किया? क्योंकि कंपनियों को 2 टैक्स देने पड़ते हैं, एक कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा जो रिजर्व बचे उसका डिविडेंड पहले कंपनी देती थी, अब शेयर होल्डर को देना पड़ रहा है. सो द लायबिलिटी इवन इन द केस ऑफ अ कंपनी इज मोर देन पार्टनरशिप फर्म और LLP इन वन वे. तो आपको फंड्स चाहिए कंपनी में तो आप डिविडेंड नहीं बांटते तो बहुत अच्छा चल रहा है. जिस दिन रिजर्व्स पड़े हैं और अनलिस्टेड कंपनी को रिजर्व चाहिए, अभी तक वो डिविडेंड देते नहीं है, उसका क्या होगा? उसका यही होगा कि डबल टैक्स पड़ रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड विच इज रिसीव्ड. पहले तो 20 पड़ता था, अब तो और मर गए, 30% प्लस सरचार्ज वगैरह पड़ेगा. इसलिए आपको मैं बता दूं, अब लोग कंपनियां बनानियां कम कर रहे हैं और LLP में शिफ्ट हो रहे हैं. आप बात समझ गए मेरा ये? हाँ. Sir, as a flight also now, so we'll quickly move to the vote of thanks. I request Vice President Sir Bodawalaji to please give a vote of thanks. Chamber President Shri Ashish Bhai, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. I am very much thankful to very learned speaker Shri Girish Bhai Ahuja ji for their wonderful presentation on reopening of case under old section 148 regime. I am also thankful to Group Chairman Anuj Jariwala, Committee Chairman Harish Bhai Tosniwal ji, Committee members Shri Pradeep Bhai Singhi ji, Mayank Bhai Desai, Anil Bhai Shah, Ketan Bhai Gadia, Avkash Bhai Jariwala, Dinesh Modi, Manish Bhai Bajrang, Vijay Bhai Jagani, Kamlesh Bhai Pandya, Dharmesh Bhai Tamakuwala for giving their efforts to make this event successful. I am very much thankful to my friend Shri Pragnesh Jagaset for wonderful MOC. I am also thankful to all our past presidents who are always there in such a very fruitful program. Thank you, sir. I am thankful to all the CA fraternities and businessmen present here. I am thankful to press and media who are always giving coverage in their media. And last but not the least, I am thankful to all the staff for this wonderful arrangement. Thank you very much.